Hi guys, welcome to the channel. How are you all? I hope you all are fine. So here's a brief introduction about me. I'm Rahul Yadav. Currently I'm doing BTech from National Institute of Technology, Karnataka, which can also be abbreviated as NITK. Currently I'm in my fourth year. So basically my hometown is Alwar, Rajasthan, and I did my 12th from Dakshina Foundation. So today let's dive into one of the most interesting topics of IIT JEE, PNC. So let's first understand these two terms which we are going to learn today. P stands for permutation. Permutation is more about arranging items where the order matters, like shuffling the cards. Like in cards, the order matters, like which cards on top and which cards are at the bottom. While on the other hand, combination is just about selecting items where the order doesn't matter. Like for example, selecting a team from a class. So here C stands for combination. So we will be learning these two topics today. So let's take a step back and understand what the countings are. So countings क्या होती हैं? Like स्कूल में हम काउंट क्या करते थे चीजें एडिशन का यूज करके जब हम बहुत छोटे थे. Like we used to count like using adding numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We used to count one by one of them. पर जैसे जैसे हम थर्ड फोर्थ क्लास में या ऊपर के स्टैंडर्ड्स में गए तो हमें पता चला कि हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है. मतलब काउंटिंग कैन बी डन इजी. सो लाइक हियर वी कैन डू इट बाय मल्टीप्लिकेशन. Like we know that 1, 2, 3, 4. We have 4 columns and we have 2 rows. So we don't need to count directly by addition, like adding one every time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We can directly multiply them, like multiplying 4 to 2. It also gives 8. And this case also by addition we get 8. So हमें पता चला कि मल्टीप्लिकेशन एक थोड़ा इफिशिएंट वे हुआ काउंटिंग करने के लिए. सो इसी तरह से यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो काउंटिंग वे हम यूज करते हैं उसे कहते हैं फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन इट नाउ. फैक्टोरियल, किसी नंबर के फैक्टोरियल को हम किस तरह समझ सकते हैं? फैक्टोरियल ऑफ n. फैक्टोरियल ऑफ n क्या रहेगा? n को उसके पिछले नंबर से तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक 1 ना आ जाए. सो n फैक्टोरियल, इसकी एनालॉजी क्या रहेगा? n into n minus 1 into n minus 2 अप टू कहां तक? जब तक 1 ना आ जाए. लाइक फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल विल बी, इसके पिछले नंबर्स क्या है? 3, 2, 1. 1 आ गया तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से. सो इस तरह से 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1 जब तक 1 आ जाए. और यहाँ पे हमें वैल्यू मिली 6. सेम वे में लेट्स थिंक ऑफ 6 फैक्टोरियल. 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द लास्ट नंबर 1. जब 1 आ जाए तब रुक जाना. सो हियर मल्टीप्लाइंग दिस यू विल गेट 2 3 is 6, 6 4 24, 120, 720. सो हम यहाँ पे समझ गए किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है. जनरली इट इज ओनली फॉर द नेचुरल नंबर्स, बट हम इसे जीरो के लिए भी समझ सकते हैं. जीरो के लिए कैसे समझेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ. फैक्टोरियल ऑफ जीरो, तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे दूसरी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है. लाइक n के फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल. सही है नहीं? क्योंकि n में n माइनस 1 से लेके 1 तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो वो अल्टीमेटली n फैक्टोरियल बन ही जाएगा. तो उसी वे में लेट्स थिंक दैट जीरो का फैक्टोरियल भी एग्जिस्ट करता है. सो इफ वी हैव टू denote one factorial, like if factorials exist up to 0, so we will write it as 1 factorial will be 1 multiplied by 0 factorial according the analogy which I mentioned above. So like we know that 1 factorial is 1, obviously from our other calculation, simple 1 multiplied by 0 factorial.
So here 0 factorial 1 comes to LHS, 0 factorial is equal to 1 by 1. So here we can understand that 0 factorial can be said as to be 1. It will be very useful further in the problems we will see how it can be made of use. So factorial का use permutations and combinations में कैसे हो सकता है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके सिखाता हूँ अभी. आप फैक्टोरियल समझ गए होंगे. सो ऐसे बहुत सारे फैक्टोरियल्स आपको याद करने की जरूरत है. मिनिमम 2 5 6 7 आपको याद होने चाहिए, लाइक इट विल बी इजियर फॉर कैलकुलेशन. सो लेट्स टेक अ स्टैंडर्ड प्रोग्राम ऑफ परम्यूटेशंस. लाइक वी हैव 3 chairs 1 2 3 and these are in order. Like this can be called as the front chair, which is 1 2 and 3, and we have 3 students A B and C. We have to put them in any order. Like हमें यहाँ पे पूछा गया है A, B and C को आप कितने ऑर्डर में बिठा सकते हो. Like एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हुई, जैसा कि आप क्लास में देख सकते हो, कोई 3 स्टूडेंट हैं, वो किस तरह से बैठ रहे हैं. आगे A बैठा है, फिर B बैठा है, फिर C बैठा है, या फिर आगे B बैठा है, फिर A बैठा है, C बैठा है. ये दोनों अलग ऑर्डर हुए. तो यहाँ पे कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी. तो यहाँ पे कैलकुलेशन का वे तो ये हो सकता है कि आप A को फिक्स कर दो आगे. Like we will fix A. अब हम देख सकते हैं B और C के क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं. आइदर A के जस्ट बाद B हो सकता है, फिर C, और A के बाद C हो सकता है, फिर B. In the same way, like we will fix B and C. So in those all situations, like B A C, B C A, C A B and C T A. We can see like यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि बेसिक काउंटिंग से हम एक्चुअल में कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन क्या हो अगर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो, तब क्या करेंगे, तब हमारा यूज आ जाता है फैक्टोरियल्स का. सो हम यहाँ पे समझ चुके हैं फैक्टोरियल का क्या यूज है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस में. सो अभी हम समझेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो कि बेसिकली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं, कुछ नोटेशंस. सो पहला नोटेशन हमारा NPR, which is mostly used for permutation, and the next is NCR, which is used in case of combinations. मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि NPR और NCR का क्या मतलब है. The mathematical form for this, NPR stands for n factorial divided by n minus r whole factorial, and here NCR stands for n factorial divided by n minus r factorial also divided by r factorial. ये कैसा होता है, इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको ये कैसे मैथमेटिकली समझ में आ जाएगा. पहले मैं आपको NPR का समझाता हूँ. NPR का समझ सकते हो कि जैसे NPR विजुअली रिप्रेजेंट कि आपको n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को आपको परम्यूटेट करना है, मींस उनको ऑर्डर में रखना है. तो कितने तरीके होंगे, उसके लिए हम NPR डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. कुल मिला के ये है इसका मतलब. सो NPR में क्या रहेगा, n अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल है. हमें पता है कुल मिला के हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, r. जैसे मान लो हमारे पास ऐसे है टोटल n में से हमें पता है कि केवल r को हमें अरेंज करना है. सो हमें पता है कि कुल मिला के हमें 8 टर्म की जरूरत पड़ेगी. लाइक फर्स्ट हमारे पास कितने ऑप्शंस रहेंगे, n ऑप्शंस हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स में से कि हम n में से कोई भी एक ले सकते हैं. तो हमारे पास n ऑप्शंस हैं. सेकंड के लिए हमारे पास ऑप्शन रहेंगे n-1 ऑप्शंस, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी ले लिया. अब किसको हम यहाँ पे रखेंगे, उन सारे n चॉइसेस में से, तो उसके लिए अब n-1 पे बचे हैं. इसी टाइप में नेक्स्ट के लिए n-2 अप टू कहां तक रहेगा, ये n-r प्लस 1 तक रहेगा. टोटल हम देख सकते हैं 1 2 3 ऐसे करके हमारे पास टोटल ये बनते हैं r. टोटल r ऑब्जेक्ट्स होंगे. इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इन सारों का मल्टीप्लिकेशन ही रहेगा यहाँ पे परम्यूटेशन. तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, इन सब का मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि n का होल फैक्टोरियल अपॉन में, मतलब इसका फैक्टोरियल हम 1 तक कंटिन्यू करते हैं और लास्ट में डिवाइड कर देंगे ये सारे नंबर जो यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे कुल मिला के आते हैं. इससे नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, इससे छोटा वाला नंबर रहेगा n-r. तो अगर इस टोटल n तक के मल्टीप्लिकेशन में हम ये वाला सेक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए. तो कुल मिला के n अप टू n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय कितना, n-r. इससे जस्ट एक छोटा नंबर है n-r, उसका फैक्टोरियल हमें कुल मिला के इनमें डिवाइड करना है, n-r का फैक्टोरियल. इस तरीके से हम n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उनको ऑर्डर में भी जमाना है. उस चीज के तरीके हमारे पास जो NPR आता था उसको हम यहाँ पे मैथमेटिकली समझेंगे कि n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल क्यों आएगा.
तो यहाँ पे हम ये चीज समझ गए। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन के लिए। कॉम्बिनेशन को समझाने के लिए हम इसी फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज लेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन में जस्ट अलग चीज क्या रहेगी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। हमने जो आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करके यहाँ पे इनको ऑर्डर में रखा है, हर ऑर्डर एक डिफरेंट वैल्यू देता है, तो यहाँ पे ऑर्डर ही मैटर नहीं करता। तो हमें पता है कि टोटल आर ऑब्जेक्ट्स हमने रखी है, उनके टोटल ऑर्डर्स आपस में कितने थे, डायरेक्ट आर फैक्टोरियल, जो कि हमने पिछली प्रॉब्लम से समझा कि आर ऑब्जेक्ट्स को अपन कितने तरीके से रख सकते हैं, टोटल आर फैक्टोरियल परम्यूटेड। तो यहाँ पे परम्यूटेशन वाली चीज मैटर ही नहीं करती, मींस वो जो आर अलग अलग परम्यूटेशन थे उनका रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि हमें जस्ट सेलेक्ट करना है। तो एनसीआर में क्या रहेगा कि यहाँ पे जो हमने एनपीआर लिया था, आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके परम्यूटेट किया था, उनमें आर फैक्टोरियल अलग अलग जो कॉम्बिनेशन थे वो वहां पे एक में ही रिजल्ट करेंगे। तो कुल मिला के हमें जस्ट क्या करना है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, वो सीधा सीधा हमें सिलेक्शन की चॉइसेस दे देगा। तो यहाँ पे हम आर फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे तो ये सीधा सीधा एनसीआर दे देना चाहिए, सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे क्या था, सेलेक्टिंग एंड परम्यूटेटिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल देगा हमें एनसीआर। हमें पता है एनपीआर क्या देता है, जस्ट अभी हमने समझा है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, नाउ आल्सो डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, ये हमारा हो जाएगा एनसीआर। तो इस तरीके से हमने एनसीआर को भी यहाँ पे डिराइव कर दिया है। सो दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यू हैव टू मेक अ बैडमिंटन टीम ऑफ 4 प्लेयर्स आउट ऑफ अ क्लास हैविंग 10 टोटल प्लेयर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। ये प्रॉब्लम देख लिए आपके दिमाग में क्या समझ में आ रहा है, देयर इज अ सिलेक्शन इन्वॉल्वड। सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्वड। आपको 10 टोटल स्टूडेंट्स में से 4 स्टूडेंट्स बनाने के टोटल कॉम्बिनेशंस देखने हैं। तो कॉम्बिनेशंस के डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एन सी आर, जहां पे n का डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वी हैव टू सेलेक्ट आर स्टूडेंट्स अमंग टोटल n स्टूडेंट्स। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 10 स्टूडेंट्स है, और हमें r कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 प्लेस यहाँ पे हमें सेलेक्ट करने हैं। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम हो गई हमारी 10C4। हम इस प्रॉब्लम को आगे कैसे मैथमेटिकली हमें टर्म बताए कि एनसीआर रिजल्ट्स इनटू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल। 10C4 तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल व्हिच इज 10 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 into 9 into 8 into 7 into 6 up to 1। तो 6 up to 1 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से लिखें ताकि वो डायरेक्टली कट हो जाए। तो 10 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 10 into 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल, और अपॉन में डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल है ही, और इनटू में 4 फैक्टोरियल में क्या होता है, इनटू 4 into 3 into 2 into 1। यहाँ पे हम आसानी से सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल से कट हो गया, 4 into 2 8 होता है, ये 8 से कट हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ पे 10 7 और 3 बचे हैं, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमें पता है 210 होगा। सो देयर आर टोटल 210 वेज ऑफ मेकिंग अ बैडमिंटन टीम ऑफ 4 प्लेयर्स आउट ऑफ अ क्लास हैविंग 10 स्टूडेंट्स। सो हमने क्या क्या चीजें आज सीखी, थिंग्स वी लर्न टुडे आर सिग्निफिकेंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। लाइक परम्यूटेशन में हम अरेंज करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम सेलेक्ट करते हैं। काउंटिंग मेथड्स एंड फैक्टोरियल इन पीएमसी, कि कैसे काउंटिंग इवोल्व हुई और फैक्टोरियल्स कैसे आए, फैक्टोरियल्स का क्या यूज होता है एक्चुअली में पीएमसी में, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा डेरिवेशंस ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर, कि कैसे जैसे एनपीआर जो कि प्रमोशन की यूज किया जाता है, एनसीआर जो कि कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, वो कैसे एक्चुअल में डेराइव कर सकते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद हमने सैंपल प्रॉब्लम सोल्व की है कॉम्बिनेशन की। सो ये जो आज का बेस हमने सीखा। सो टू सम अप, लाइक PNC are very powerful tools which we can be used for understanding how we can select and arrange objects. These are very useful subject and it can be mostly used in probability, statistics and more advanced topics like which we will learn in the forward classes. So जो बेस हमने आज बिल्ड किया एक्चुअल में, उसके बेस पे हम आगे नए चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स आगे समझ सकते हैं। इसके बाद और भी काफी सारे टॉपिक्स रहेंगे, कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स रहेंगे, कुछ नए वेज रहेंगे। सो हमने जो आज बेस किया है उसको आप रिवाइज करिए और नेक्स्ट क्लासेस में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो।